Good morning, students. Welcome back. In our previous video, we have already started Saving the Tiger chapter. We have studied that the author, after becoming wildlife filmmaker, meets tigers several times, but the first glimpse that he had when he was 19, he cannot forget. Later on, he has also said that according to Dr. Ullas Karnath, who is a wildlife expert, plus basically he is a tiger expert, Indian forests can have more 3000 tigers, and for it we have to save our tigers. Now today we'll be starting from paragraph number 3. Most of us are aware that tiger poaching is a major threat. हम में से बहुत लोगों को ये पता है कि टाइगर्स की जो ये संख्या घट रही है उसका मेन कारण है कि टाइगर्स का शिकार हो रहा है. Every part of the tiger, be it its skin, bones or body parts, is in high demand in China and parts of Southeast Asia, where the skin is used for decorative purposes and the bones and body parts are used as ingredients in traditional medicines. Underline decorative, सजाने के लिए, ingredients, सामग्री, traditional, पारंपरिक. चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में टाइगर्स के बहुत सारे हिस्से, चाहे से उनकी खाल हो, उनकी हड्डियां हो या शरीर के बहुत सारे दूसरे हिस्से हैं, उन सब का इस्तेमाल दवाओं के लिए और सजाने की सामग्री बनाने के लिए होता है. इसलिए चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इन टाइगर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. Although there is no evidence of the efficacy of tiger products in treating illness, deep-rooted superstitious beliefs fuel the increasing demand. Underline evidence, सबूत होना, efficacy, importance होना या फिर उसका effectiveness होना, and superstitious beliefs, दकियानूसी बातें. हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि टाइगर के शरीर के हिस्से वाकई में किसी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन फिर भी जो दकियानूसी बातें हैं या जो इंसान की सोच है उसकी वजह से टाइगर्स को उनके शरीर के हिस्सों की प्राप्ति के लिए खत्म किया जा रहा है. With tigers having been driven to extinction in most other Asian countries, our national parks and sanctuaries have become the main targets of poachers. क्योंकि एशियन कंट्रीज के बहुत सारे हिस्सों से ये टाइगर्स एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके हैं. अंडरलाइन एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं. इसीलिए हमारी जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स हैं उनमें से ही अब इन जानवरों का शिकार हो रहा. Two other factors worsen the impact of tiger poaching: habitat destruction and the poaching of prey animals. दूसरे दो और कारण जिनकी वजह से इन जानवरों की या इन टाइगर्स के जो शिकार पर प्रभाव पड़ रहा है वो ये है कि पहली चीज जानवरों का या इन टाइगर्स का जो हैबिटेट है, घर है, वो नष्ट हो रहा है, और दूसरी चीज इन टाइगर्स का जो भोजन है उन दूसरे जंगली जानवरों का भी शिकार हो रहा है. Several hundred years ago, most of India was clothed in forests and tens of thousands of tigers roamed the length and breadth of the country. बहुत सालों पहले भारत जंगलों से ढका हुआ था और तब इन टाइगर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और ये टाइगर्स भारी मात्रा में भारत के जंगलों में घूमते थे. But as the human population increased and agriculture expanded, forests were felled to such an extent that today
Tigers are confined to the green islands we call national parks and sanctuaries. Underline expanded, विकास होना, felled, गिराया जाना, confined, मजबूर या बाध्य हो। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और जैसे जैसे खेतों का विकास हुआ, उनकी वजह से जंगलों की कटाई अंधाधुंध तरीके से होने लगी और इन जंगलों की कटाई की वजह से जो टाइगर्स हैं वो मजबूरी में इन नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज में रहने के लिए बाध्य हो गए। Another threat, and one that often goes unnoticed, is the rampant poaching of prey animals by people living around our nature reserves. Underline rampant, बहुत ज्यादा। दूसरा कारण जिनकी वजह से इन टाइगर्स की संख्या पर असर आ रहा है वो है इन नेशनल पार्क्स के आसपास के इलाकों में इंसानों के द्वारा दूसरे जंगली जानवरों का भी शिकार किया जाना, जिसकी वजह से जानवरों का भोजन खत्म हो रहा है। Using a variety of methods, including snares, traps, guns, arrows and poison, huge number of deer, birds and other animals are illegally hunted by people for meat. बहुत सारे अलग अलग तरीकों के द्वारा, चाहे से बंदूक से हो, तीर से, भाले से या जमीन पर जाल फैलाकर पक्षियों को, हिरणों को और दूसरे जानवरों को पकड़ा जा रहा है। इनकी वजह से इन टाइगर्स का भोजन खत्म हो रहा है। When prey becomes scarce in the forest due to hunting, it affects the tiger population. इस गैर कानूनी तरीके से होने वाले हंटिंग की वजह से शिकार स्केर्स हो रहा है, अंडरलाइन स्केर्स, कम हो रहा है और जब शिकार ही कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो अपने आप ही टाइगर्स भूख के कारण खत्म होने लगे। A tigress that can raise 4 cubs in a forest with abundant prey may not be able to raise even 1 cub successfully in a forest where prey is scarce. Underline abundant, प्रचुर मात्रा में, and scarce, कम हो। जहां पर एक जंगल में प्रचुर मात्रा में या बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर शिकार या भोजन उपलब्ध है, वहां पर एक टाइग्रेस 4 बच्चों को आसानी से पाल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जब शिकार की कमी होती है तो ऐसे जंगलों में एक मां के लिए एक छोटे बच्चे को पालना भी मुश्किल हो जाता है। That's all for today. The next portion we'll discuss in our next video.